Good morning, students. This session is for class 8th. Students, we are studying chapter 6, Combustion and Flame, NCRT. Okay. Students, we have already completed this chapter by using PPTs. Now we are studying the same chapter from your NCRT book. Okay. So you can see the page of your NCRT book here. Last day we have completed about combustible substance, combustion, and about the fuel. Let us start with the question of the last session. So लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था वहीं से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. सो देखिए कौन सा क्वेश्चन था वो. आई होप यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन. अगर रिमेंबर नहीं है आप लास्ट सेशन को पहले देखिए. लास्ट क्वेश्चन हमारा था लास्ट सेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं. दिस वाज द क्वेश्चन. डज अ मैच स्टिक बर्न बाई इट सेल्फ. ये क्वेश्चन है. देन सेकेंड क्वेश्चन था हाउ डज इट बर्न. ये कैसे बर्न करता है. क्या मैच स्टिक अपने से जलने लग जाता है. हाउ डज इट बर्न. अगर नहीं तो फिर ये कैसे जलता है. नाउ यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट. तो यहाँ पे आपको पता है मैच स्टिक. डज ए मैच स्टिक बर्न बाई इट सेल्फ. तो इसका आंसर होगा नो, अपने से तो नहीं जलता है. नाउ हाउ डज इट बर्न. ये कैसे बर्न होता है. ये क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका आंसर लिखने के लिए. सभी को एक्सपीरियंस है मैच स्टिक के बारे में, तो इसका आंसर आप लिख के आप भेजेंगे. ठीक है. नाउ अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट. तो क्या जब किसी पीस ऑफ पेपर के पास बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो ये जलने लगता है, मतलब ये फायर को कैच कर लेता है. तो आपका आंसर है यस. तो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैच स्टिक जो होता है जब वो पीस के पेपर पीस के पास आता है तो वो जो पेपर पीस है वो फायर को कैच कर लेता है. ओके. और बहुत ईजिली कैच कर लेता है. बट अगर इसी चीज़ को हम लोग वुड के साथ एक्सपेरिमेंट करें, मतलब हम लोग क्या करें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट. तो क्या होगा इसका आंसर. थिंक अबाउट दीज टू क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए. आई एम गिविंग यू 1 minute time. Okay, to try to think about these two questions. Student, we have already discussed these things by using PPT. Now we are studying the same thing by using the text given in your NCRT book. Okay, so you can think about these two questions because we have already completed this chapter. This session is for revision. Okay, so think about these two questions. I am giving you 1 minute time. Okay. So students, your time is over and I hope you got the answer. Yes, the answer is
No. The answer of the second question, that is, can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? So your answer is no. Now, why it happened? So we are going to study in detail about this, that why piece of paper catches fire easily by the matchstick, whereas a piece of wood does not. Okay, so this is the question, and we are going to study the answer of this question in detail. Now you can see there is one another question in the same paragraph, and you can see, why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? So this question is again related to the answer of the question second, that is, why wood does not catches fire directly from the matchstick. Okay, so let's us discuss about these questions in detail. You can see here, have you heard of forest fire? So I hope you heard about the forest fire, and you can see this is a picture related to the forest fire, and this is picture taken in summer season. You can see here, during extreme heat of summer, at some places dry grass catches fire. From the grass it spreads to trees, and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर हीट्स, जब समर सीजन में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, एट सम प्लेसेस, कहीं कहीं पे ड्राई ग्रासेस जो होती हैं वो फायर को कैच कर लेती हैं, और इन ग्रासेस से ये फायर पूरे ट्रीज़ को और फिर पूरे फॉरेस्ट में फैल जाता है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं क्यों ऐसा समर सीज़न में ही होता है? ठीक है, समर सीज़न में ही ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है. तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स सेम हैं, यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अब. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है. जब यहाँ पे देखते हैं, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट different substances catches fire at different temperatures? Yes. So you can see here, the conclusion of all these questions is that the different substances catches fire at different temperature. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो रूम टेम्परेचर पे फायर कैच कर सकता है, कोई 40 डिग्री पे कैच कर सकता है, कोई 70 डिग्री पे करेगा, कोई 100 डिग्री पे करेगा. इसीलिए सेम टेम्परेचर पे सभी सब्सटेंस फायर को कैच नहीं करते हैं, बल्कि फायर को कैच करने के लिए उन सभी का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, और इसीलिए सारी चीज़ें एक ही टेम्परेचर पे बर्न करना स्टार्ट नहीं करती हैं. अब यहाँ पे देखते हैं कि लोअर टेम्परेचर जो है जिस पे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है उसे क्या कहेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं, the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए, सपोज ए कोई सब्सटेंस है, ठीक है. यहाँ पे इसका टेम्परेचर है, सपोज कर लेते हैं इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री. दिस इज रूम टेम्परेचर. ओके, सपोज दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ ये नॉर्मल कंडीशन में, मतलब ये बर्न नहीं कर रहा है. अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं. सपोज इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 31, देन 32, देन 33, देन 34, और ऐसे ही कंटिन्यू इंक्रीज़ करते 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 सपोज इसका टेम्परेचर हम लोग 79 डिग्री सेल्सियस तक
लेके चले गए, ठीक है, सपोज 79 तक चले गए, बट अभी भी ये बर्न नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये बर्न करना स्टार्ट हो गया। अब 81 पे भी ये बर्न कर रहा है, 82 पे बर्न करेगा, ऐसे ही जितना भी हाई अब टेम्परेचर करे ये बर्न करता ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए लोवेस्ट टेम्परेचर जो है जिस पे इसने फायर को कैच किया था वो है 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस मटेरियल ए के लिए इग्निशन टेम्परेचर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस मटेरियल के अंदर एक खास प्रॉपर्टी है कि ये 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्न करता है, उससे नीचे ये बर्न नहीं करेगा। तो अगर आप इसके पास एक मैच स्टिक ले आएंगे तो ये फायर को कैच नहीं करेगा, क्योंकि मैच स्टिक इसके पास ले आने से इसका टेम्परेचर 80 डिग्री नहीं हो पाएगा। अब क्या करना होगा हमको, किसी भी तरीके से इसका टेम्परेचर इसको 80 डिग्री करना होगा। जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाएगा ये तुरंत फायर को कैच करके बर्न करने लग जाएगा। जैसे ये फायर को कैच करके इसका कोई पोर्शन बर्न करना स्टार्ट होता है, उसी की हीट से इसके अदर पार्ट में जो टेम्परेचर होते हैं वो इंक्रीज़ करने लग जाते हैं और ये पूरा का पूरा सब्सटेंस फायर को कैच करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही है डिफिनीसन, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आते हैं आगे। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैचेज फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? तो यहाँ पे अब हमें लगता है कि आप इसका आंसर बता सकते हैं कि मैच स्टिक जो होती है वो खुद फायर को कैच क्यों नहीं कर लेती है, और जैसे ही इसको इसके आउटर जो साइड है मैच बॉक्स की उसके बाहर रब करते हैं तो ये फायर को कैच कर लेती है। तो आई होप कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर बता देते हैं आपको। जब आप मैच स्टिक को इसके बाहर वाली साइड पर रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ओके। और जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को तक पहुंच जाता है, और जैसे ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है ये फायर को कैच कर लेता है, ओके। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये आंसर आसानी से समझ में आ गया होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस एक बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, कैसे मैच स्टिक को इन्वेंट किया गया था, इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। सो द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड, मोर देन 5000 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। अगर आप देखें 5000 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा पहले की बात है ये। सो मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेज ऑफ pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। तो यहाँ पे देखिए पाइन वुड जो होता है उसकी स्मॉल पीसेस को सल्फर में डीप करके यूज़ किया जाता था इजिप्ट में। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे जो मॉडर्न हमारे सेफ्टी मैचेस हैं जो इतने सेफ़ हैं, जिनमें फायर बहुत ही ईज़िली कैच नहीं करते हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत सेफ़ है। इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो इनकी हिस्ट्री अप्रॉक्सीमेट 200 ईयर्स एगो की है, मतलब 200 साल लगभग पुरानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये केमिकल का नेम है, ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। उसके बाद ये भी केमिकल है पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस विथ सम ग्लू एंड
starch was applied on the head of a match made of suitable wood। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका यूज किया जाता है मैच स्टिक बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, ठीक है, ये एक केमिकल है। सेकेंड केमिकल है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है। एंड वाइट फास्फोरस विथ सम ग्लू, कुछ ग्लू के साथ। एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to heat of friction। तो यहाँ पे देखिए जब इस मैच स्टिक को किसी सरफेस पे रब करते हैं, when struck against rough surface, white phosphorus got ignited due to heat of friction। तो जो white phosphorus होता है वो ignite होता है, जलना स्टार्ट करता है ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होती है उसी से। दिस स्टार्टेड द कंबसन ऑफ मैच, और ये क्या करता है, जो मैच है ये जलने लग जाता है, इसका कंबसन स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर वाइट फास्फोरस प्रोवाइडेड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैच एंड फॉर द यूजर्स। तो आप देख सकते हैं वाइट फास्फोरस बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, बोथ दोनों के लिए, किसके किसके, वर्कर्स जो मैच स्टिक बनाते हैं और यूजर जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं। सो दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राईसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे अब जो मॉडर्न हमारे पास मैच स्टिक आ रहे हैं उसमें हमने सेफ्टी पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, वाइट फास्फोरस का यूज़ नहीं करते हैं। और अब क्या करते हैं, दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राईसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का यूज़ किया जाता है। एंड द रबिंग सरफेस, जिस सरफेस पे रब करना है, रबिंग सरफेस है पाउडर ग्लास एंड लिटिल रेड फास्फोरस। तो उस सरफेस पे लगा होता है ये रेड फास्फोरस और बहुत ही लिटिल अमाउंट में ग्लास, विच इज मच लेस डेंजरस, जो कि बहुत ही कम डेंजरस है एज कम्पेयर टू द वाइट फास्फोरस। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फास्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फास्फोरस। यहाँ देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हिस्ट्री है। इसको अगर आप समझ पा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंगली चीज़ों को कन्वर्ट किया जा रहा है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट रबिंग सरफेस, जब इस मैच को स्ट्रक किया जाता है अगेंस्ट रबिंग सरफेस, सम रेड फास्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फास्फोरस। कुछ रेड फास्फोरस जो होते हैं वो वाइट फास्फोरस में चेंज हो जाते हैं। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट, और जो तुरंत ही पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है इन मैस्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी, और ये इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि एंटीमनी को ये इग्नाइट कर देता है, ओके, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड को, एंड स्टार्ट द कंबसन, और कंबसन स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। तो एक बार आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं कि आपको हम लोग बिगनिंग में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करते थे और इस टाइम कौन कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में, तो ये एक पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट and white phosphorus with some glue and starch was
applied on the head of a match made of suitable wood. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. ठीक है, अब क्या करते हैं, when struck against rough surface while phosphorus got ignited due to heat of friction. तो जो फास्फोरस है वो इग्नाइट हो जाता है और उसके बाद वही क्या करता है, फर्दर इग्निशन या फर्दर जो कंबसन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें, जो हमारा जो अभी हम लोग जो मैस्टिक यूज़ करते हैं ये काफ़ी एडवांस है और ये काफ़ी सेफ भी है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करते हैं एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड glass and little red phosphorus which is much less dangerous. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. एक बार फिर से दिखा देते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट ये यूज़ करते हैं अभी मॉडर्न जो हमारे जो बहुत ही सेफ मैस्टिक है उसमें. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फास्फोरस. जो रबिंग सरफेस है उस पर क्या है, पाउडर ग्लास और बहुत ही कम अमाउंट में रेड फास्फोरस होता है. क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये बहुत ही मच डेंजरस हैं, जैसे कि उससे कम डेंजरस है जो रेड फास्फोरस है. अब होता क्या प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. तो प्रोसेस भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसको पढ़िए. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately react with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony triphosphide and start the combustion. So let me repeat once again. When the match is struck against the rubbing surface, जैसे ही मैच को सरफेस के अगेंस्ट रब किया जाता है, सम रेड फास्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फास्फोरस. जो रेड फास्फोरस है उसका कुछ अमाउंट वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट, और यह तुरंत पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करता है इन द मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट. मैचस्टिक के हेड पे और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इनफ हीट टू इग्नाइट, जो इग्नाइट कर देता है एंटीमनी ट्राई फास्फाइड को, और यही फर्दर कंबसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो आई होप कि आपको मैचस्टिक की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे समझ में आई है. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ भी है और आपके डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि हम सभी ने मैचस्टिक का यूज़ ज़रूर किया है कभी न कभी. मैचस्टिक कैसे बर्न करती है, कैसे उससे दूसरी चीज़ें फायर कैच करती हैं, उन पर कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी था जो आप यहाँ पे जान पाए. सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट था ये इस चैप्टर का एंड आई होप कि आपको भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा इसको जान के. ओके, सो चलते हैं अब आगे इस चैप्टर में, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या क्या चीज़ें बची हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते थे हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था. वाई डज मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स. तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. We find that a combustible substance cannot catch
fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. ओके, तो आपको ये बात पहले से पता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस का कंबसन हो तो भी उसे मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती ही है, और उसी मिनिमम टेम्परेचर को आप बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, इग्निशन टेम्परेचर सभी सब्सटेंस का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं उन सभी के लिए भी इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होगा, इसलिए वो अलग अलग टेम्परेचर पे फायर को कैच करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर? जो हमारा कुकिंग ऑयल है, आपको पता है कुकिंग ऑयल में आप डिफरेंट टाइप के ऑयल यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे कुकिंग ऑयल आते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है। तो आपने देखा होगा कुकिंग ऑयल कैचेज फायर, ये ऑयल जो होते हैं ये भी फायर कैच कर लेते हैं। व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग, जब कभी फ्राइंग पैन बहुत ज़्यादा टाइम तक बर्निंग स्टोव पे रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केरोसिन ऑयल और जो वुड है ये रूम टेम्परेचर पर फायर को कैच नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने कहीं रूम टेम्परेचर पे किसी बॉटल में केरोसिन ऑयल या अपने आसपास वुड रखा है तो रूम टेम्परेचर पे बर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। तो ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपने देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैचेज फायर। अब अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट करें तो ये फायर कैच कर लेता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नो कैच फायर। बट अगर वुड को थोड़ा सा हीट भी करें तब भी ये फायर को कैच नहीं करता है। तो आप यहाँ पे सभी सब्सटेंस की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आप यहाँ पे उनको देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केरोसिन भी जल सकता है, बर्न कर सकता है, वुड भी बर्न करता है, बट केरोसिन को अगर थोड़ा सा हीट करें तो बर्न करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जबकि वुड की अगर हम बात करें तो वुड को थोड़ा सा हीट करने पे वो बर्निंग स्टार्ट नहीं करता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसके आगे समझते हैं कि अब क्या रीज़न है। सो डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो क्या इसका मतलब ये है, और हमें पूरा यकीन है कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है अब, ठीक है। और डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? ओके, and the following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पहले डिस्कस कर देते हैं। तो जी हाँ, डज इट मीन वी नीड टू टेक स्पेशल केयर स्टोरिंग केरोसिन? जी, तो इससे पहले का क्वेश्चन है डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? हाँ, तो इसका आंसर होगा येस, बिकॉज केरोसिन ऑयल लोअर टेम्परेचर पे ही बर्निंग स्टार्ट कर देता है, इसलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है एज कंपेयर टू इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। और इस तरीके से क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है वो लो टेम्परेचर पे भी बर्न कर सकता है, इसलिए उसको स्टोर करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ही जल्द फायर को कैच कर सकता है अगर थोड़ा भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट द इसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी की हेल्प से समझने जा रहे हैं कि किसी सब्सटेंस को अगर बर्न करना है तो उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर
तक जाना ज़रूरी है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं इस एक्टिविटी की हेल्प से। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड आई वांट टू गिव यू सम सजेशंस। स्टूडेंट्स, try to revise topic daily wise, then only you will be able to remember the different terms and you will be able to understand the concept in deep. Okay, and you will be able to write the correct in examination. Try to write about the terms by yourself. Suppose try to write ignition temperature. Suppose you write ignition temperature. Now try to write about ignition temperature by yourself, and you can test your knowledge by yourself. तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप ignition temperature के बारे में क्या क्या जानते हैं. Now try to collect different materials around you and try to find out the ignition, which one has greater ignition temperature among them. So by using these activity you can test yourself and you can enhance your knowledge by yourself, and you will be able to write the things in your own word. Okay, so I hope you understand and you enjoyed this session, because this chapter is related to our daily life and this is very interesting chapter. I hope you understand about the matchstick and you got deep knowledge about the matchstick. So thank you for watching. In the next session we will start from the activity 6.4. Okay.